Very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So class, today we all are going to start our new chapter of your political theory book, and the name of your chapter is Rights. So class, if you look at this picture, which is mentioned in this page, mentioned on the front uh, page of this chapter, just look at the voting rights now, segregated rules in public schools, law now, freedom, rights for all, etc., etc. So we often talk about rights in our everyday life. We talk about right to vote, right to contest election, right to form political parties, etc., etc. But these are the political rights, right? So in a democratic country like ours, like India, we talk about rights as right to vote, right to information, right to form political parties, right to contest elections, and there are so many rights. But apart from these rights, there are many different rights. Okay? People are demanding for different rights, such as the right to information. Like we have this right, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हो मार्केट में, ठीक है, and if you before purchasing that product you wanted to know about that particular product, so you are asking to the retailer or the shopkeeper what are the ingredients of this product, or what is the MRP of this product, what is the expiry date of this product, etc., etc. So this is right to information. Right to clean air, we have this right. We nature is providing clean air, but as a human being, we human being are creating pollution, we are polluting the environment. So it should be our right to have clean air. ये हमारा right होना चाहिए. Right to safe drinking water. Why we are like demanding these types of rights? Because nature provided these things to us, and we are asking for the purity, we are asking for the clean air, we are asking for the safe drinking water, because इन सब के पीछे इनके जो पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वो उसका जो मेन कॉज है वो क्या है? ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग आप बोल सकते हो, उनके वजह से जो है पोल्यूशन ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, right? So now people are asking for clean air, right to safe drinking water. So they may be claimed not only in relation to our political and public lives, but also in relation to our social and personal relationships. ठीक है? अब देखो, now women or you can say human beings are asking for the security कि हम इस कंट्री में रह रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, तो मतलब हमें एक सिक्योरिटी होना चाहिए, श्योरिटी होना चाहिए कि हम यहाँ पे पीसफुल रह सकते हैं. तो दिस इज, दे आर क्लेमिंग दिस एज अ राइट कि हमारा ये राइट है, पीसफुली रहना हमारा राइट है, राइट? सो पॉलिटिकल और सिविल राइट्स के अलावा भी क्या होते हैं हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में, सोशल रिलेशनशिप्स में राइट्स होते हैं, हमारी पब्लिक लाइव्स में भी राइट्स होते हैं. सो rights may be claimed not only for adult human beings but also for the children, unborn fetuses, and even animals, and even environment too, Himalayas, trees, etc. इनके लिए भी क्या होते हैं? राइट्स होते हैं, ठीक है. सो ओनली ऐसा नहीं है कि एडल्ट ह्यूमन बींग्स, जैसे राइट टू वोट इज फॉर एडल्ट ह्यूमन बींग. इन इंडिया एडल्ट एज ऑफ वोटिंग इज 18 years एंड अबव, राइट? तो बट खाली एडल्ट्स के लिए ही राइट्स नहीं होने चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि एडल्ट्स ही राइट्स को क्लेम कर सके, बट राइट्स आर ऑल्सो फॉर चिल्ड्रेन. जो आपने सुना होगा फिटसेस की भ्रूण हत्या, आपने सुना होगा. तो वो बोलते हैं ना कि भ्रूण हत्या मतलब गलत है, ठीक है, नहीं करना चाहिए, उनको भी लाइफ में आने का अधिकार है. तो अनबॉर्न फिटसेस हो गया, अनबॉर्न फिटसेस के भी राइट्स होते हैं, एनिमल्स के भी राइट्स होते हैं, लाइक एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स, बहुत सारे एक्ट्स लगाए हैं. तो ये क्या है? उनके राइट्स हैं, उनको नेचर ने क्या दिया है? उनको नेचर ने लाइफ दी है, एंड उनके लिए भी राइट्स होने चाहिए. इवन फॉर एनवायरमेंट
So the notion of rights is thus invoked in a variety of different ways by different people, and in this chapter we will explore what do we mean when we speak of rights, what are rights, what do we mean when we speak of rights, what is the basis on which rights are claimed, कौन से ऐसे basis होने चाहिए, principles होने चाहिए जिस basis पे हम क्या कर सकते हैं, rights को claim कर सकते हैं, what purposes do rights serve and why are they so important, क्या rights ऐसे कौन से purpose हैं जो serve कर रहे हैं और why we consider rights as so much important. So we will talk about, after going through this chapter, after studying this chapter, we will able to answer all these questions. Okay, so basically in this chapter we will talk about what are rights, where do rights come from, like Kant, Immanuel Kant, he was a very very great philosopher, or you can say very great philosopher. So what his viewpoints on human dignity, we will talk about it. We will talk about legal rights and the state kind of rights. Okay, what are some legal rights, what are some state rights, we will talk about it. We are going to study about right and responsibilities, which I think कि हमें बहुत like प्राइमरी क्लासेस से हमें पढ़ाना चाहिए भी। हम अपने राइट्स के बारे में तो बात करते हैं, हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि हमारे राइट्स हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, ड्यूटीज की कोई बात नहीं करता। तो आई थिंक राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, राइट्स प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है नेचर को सर्व करने की, ठीक है, और नेचर को सर्व करने की, नेचर में सब कुछ आ जाता है, ठीक है, नेचर को सर्व करने की, कंट्री को सर्व करने की हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो हमें आई थिंक कि बहुत लोअर लेवल से ही इस चीज को, प्राइमरी लेवल से हमें इस चीज को पढ़ना चाहिए, बताना चाहिए। तो वी विल, कोई बात नहीं, वी विल टॉक अबाउट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दिस चैप्टर। ओके, so now our very first topic of this chapter is what are rights, ठीक है, what are rights. So a right is essentially an entitlement or a justified claim. Entitlement means, you can say official right, or you can say what are entitled to us as citizens, as individuals and as human beings, क्या entitle होना चाहिए, क्या justified claim होना चाहिए, क्या official rights होने चाहिए। So a right is essentially an entitlement or a justified claim. It denotes what we are entitled to as citizens, as individuals and as human beings. It is something that we consider to be due to us, something that the rest of society must recognize as being a legitimate claim. Legitimate, we talked about legitimate, you all studied about legitimate in your prior classes, class 10th में legitimate government के बारे में पढ़ा होगा। What is legitimate? Legitimate in something which is valuable, which is acceptable to everybody, which is acceptable to society. So something which is socially approved. Okay, so right is something which we consider to due to us, something that the rest of the society must recognize as being a legitimate claim, कि society उसे समझे कि ये valuable है, rights are valuable to us, ठीक है। ऐसे claims होने चाहिए जो valuable है, socially approved है। ऐसा नहीं आप कोई बोल देगा कि मैम I have this right to speech, अब इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी बैड लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, आप कुछ भी किसी को भी बोल रहे हो। नो, दिस इज नॉट योर लेजिटिमेट क्लेम ऑफ राइट। आप ऐसे किसी को भी या फिर कुछ भी वर्ड या टर्म यूज नहीं कर सकते हो। इन द चैप्टर फ्रीडम ऑल्सो हमने पढ़ा था कि कुछ चीजें ऐसी भी होती है, फ्रीडम में भी हमने पढ़ा कि सारी फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें, हम कहीं पे भी चले जाएं या कुछ भी कर लें। एक होता है ना कि कुछ एस्पेक्ट्स में जो है फ्रीडम को क्या है, कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं कुछ एस्पेक्ट्स में, जस्ट लाइक दैट राइट्स के लिए भी क्या है, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स में, राइट्स में भी कॉन्स्ट्रेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो इट शुड बी लेजिटिमेट, सोशली अप्रूव्ड होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए। This does not mean that everything that I regard to be necessary and desirable as a right.
I may want to wear the clothes of my choice to school rather than the prescribed uniform. I may want to stay out late at night, but this does not mean that I have a right to dress in any way I like at school or to return home when I choose to do so. There is a distinction between what I want and think I am entitled to and what can be designated as rights. Now, very like a very claimable example or you can say बहुत easy example आपको एक बताती हूँ school uniform का. Now some students are like speaking ma'am कि स्कूल में ऐसा क्यों होता है कि स्कूल में हमें कोई भी कपड़े नहीं पहन एक यूनिफॉर्म होती है हम अपने चॉइस के कपड़े क्यों नहीं पहन के आ सकते सो ये ड्रेस जो है किस लिए रखी जाती है यूनिफॉर्म एक यूनिफॉर्मिटी रहे ठीक है इक्वालिटी रहे ठीक है आपके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन हो ठीक है आपके अंदर वैल्यूज इनकलकेट करने हैं दैट्स व्हाई लाइक स्कूल्स जो है वो यूनिफॉर्म्स को क्या करती है प्रिस्क्राइब करती है यू यू हैव टू वियर दिस प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म व्हिच इज गिवन बाय योर स्कूल ठीक है ऐसा नहीं आप कोई भी चॉइस की कपड़े पहन के आ जाओगे अब आप अपने घर पे ठीक है आपने बहुत ऑफनली सुना होगा या आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा आपके जो पेरेंट्स हैं नॉर्मली हमें बोला जाता है कि ठीक है 7 o'clock 8 o'clock एक टाइम लिमिट होती है इसके बाद आपको घर से बाहर नहीं जाना है आपका इतना लिमिट है आप इतने बजे तक घर आ जाना इफ यू आर गोइंग फॉर द यू आर गोइंग टू मूव आउट विद गोइंग फॉर अ आउटिंग फॉर विद योर फ्रेंड तो एक आपको टाइम लिमिट दे दी जाती है ऐसा नहीं है कि मेरे पास फंडामेंटल राइट है आई कैन ट्रेवल एनीवेयर आई कैन मूव एनीवेयर इन द इंडियन टेरिटरी दिस इज माय फंडामेंटल राइट तो मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ कहीं पे भी जा सकती हूँ नहीं एक हर एक फैमिली की क्या होती है रिस्ट्रिक्शंस होती है कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं एंड वी फॉलो दीज तो जो सोशली अप्रूव्ड हो ठीक है ये एक एग्जांपल दिया आपको फैमिली का ठीक है आपकी फैमिली को ये अप्रूव्ड है लेजिटमेट है इट इज लेजिटमेट क्लेम कि मैं मामा मैं आउटिंग के लिए चले जाऊं मैं 8 o'clock तक आ जाऊंगी या 7 o'clock तक आ जाऊंगी एंड वट एवर योर प्रिंसिपल यू फॉलो इन योर होम ओके तो ये लेजिटमेट होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप बोल दोगे मेरा फंडामेंटल राइट है मैं कहीं पे भी मूव कर सकती हूँ या कुछ भी आई कैन लिव एनीवेयर आई कैन गो एनीवेयर नो ठीक है तो जस्ट लाइक दैट जो भी हमारे राइट्स हैं वो कैसे होने चाहिए वो लेजिटमेट होने चाहिए जस्टिफाइड होने चाहिए okay so rights are primarily those claims that I along with others regard to be necessary for leading a life of respect and dignity so it is considered to be necessary for leading a life of respect and dignity ठीक है एक rights क्यों जरूरी है एक respectful life के लिए एक dignified life के लिए जरूरी है on the grounds one of the grounds on which rights have been claimed is that they represent condition that we collectively see as a source of self respect and dignity ठीक है एक ऐसी भी कंडीशन है जब हम एक कंडीशन जो राइट्स के वो क्या है कि हमें हमारे राइट्स होते हैं हम कहीं जा रहे हैं ठीक है और and if we are like asking for something तो ये if we are asking if we are inquiry for something that this is our right ठीक है एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी है ठीक है सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को शो करता है सो देखिए एग्जांपल दे रखा है द राइट टू लाइवलीहुड मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी ऑब्वियसली राइट टू लाइवलीहुड नहीं होगा तो आप डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी सकते हैं So being gainfully employed gives a person's economic independence as thus is central for his or dignity. ठीक है हम कोई वर्क कर रहे हैं हम कहीं पे एम्प्लॉयड हैं हमारी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है तो वी आर लिविंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी हम एक सेल्फ रिस्पेक्ट एक डिग्निफाइड लाइफ क्या कर रहे हैं जी रहे हैं सो हैविंग आवर बेसिक नीड्स मेट gives us freedom to pursue our talents and interests or take the right to express ourselves freely this right gives us the opportunity to be creative and original ठीक है कितने क्रिएटिव हैं हम कितने ओरिजिनल हैं क्या हम अपने राइट्स को ठीक है हम अपने टैलेंट को डांस के
फॉर्म, डांस के फॉर्म में, राइटिंग के फॉर्म में, म्यूजिक के फॉर्म में, या किसी भी अदर कोई क्रिएटिव एक्टिविटी के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। राइट्स हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है, अपॉर्चुनिटीज टू बी creative, to express ourselves freely. But freedom of expression is also important for democratic government since it allows for the free expression of beliefs and opinions. Rights such as the right to livelihood or freedom of expression would be important for all human beings who live in a society, and they are described as universal in nature. So rights, right to livelihood, right to express ourselves, right to express ourselves. Why right to freedom of expression? Why it is given to us? Because if we have this right, we can express ourselves, we can come up with the different notions, different ideas. ठीक है, we became more creative. ठीक है, हम अपने आइडियाज को, हम अपने टैलेंट को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इट इज यूनिवर्सल इन नेचर. ठीक है, हमारा टैलेंट, हमारा जो क्रिएटिविटी है, इट इज यूनिवर्सल इन नेचर. सो ये पहला ग्राउंड हो गया. ठीक है, सेकेंड ग्राउंड, अनदर ग्राउंड ऑन विच राइट्स हैव बीन क्लेम्ड इज दैट दे आर नेसेसरी फॉर आवर वेल बीइंग. दे हेल्प इंडिविजुअल्स टू डेवलप देयर टैलेंट्स एंड स्किल्स. राइट लाइक द राइट टू एजुकेशन, जैसे राइट टू एजुकेशन है, वो क्या है, इट हेल्प्स टू डेवलप आवर कैपेसिटी टू रीजन, गिव्स अस यूजफुल स्किल्स एंड इनेबल्स अस टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस इन लाइफ. हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, तो हमें क्या बना रहा है, वो हमारे अंदर जो डिफरेंट स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, उसको क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है. ठीक है, हम वी कैन गिव रीजंस, we can put our opinions, viewpoints on different. हमें अगर किसी भी बात के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, तो हमें उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए ना. तो एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन हमें हमारी जो हमारा जो टैलेंट है, हमारे जो रीजनिंग कैपेसिटी है, उसको डेवलप करने में, स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है. हमारी लाइफ में क्या चॉइसेस होंगी, उसे डेवलप करने में हमें हेल्प करता है, उसे चॉइसेस को लेने में हमें हेल्प करता है. सो इट इज इन दिस सेंस दैट एजुकेशन कैन बी डेजिग्नेटेड एज अ यूनिवर्सल राइट. ठीक है, बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये इंडिविजुअल्स को डेवलप करने में, उनके टैलेंट्स को डेवलप करने में, उनके स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है, उनके लाइफ के चॉइसेस लेने में उनको हेल्प कर रहा है. So, however, if an activity is injurious to our health and well-being, it cannot be claimed as rights. For instance, since medical research has shown that prohibited drugs are injurious to one's health, and since they affect our relations with others, we cannot insist that we have a right to inhale or inject drugs or smoke tobacco. In the case of smoking, it may even be injurious to the health of people who may be around the smoker. Drugs may not only injure our health, but they may also sometimes change our behavior patterns and make us a danger to other people. So, in terms of our definition of right, smoking or taking banned drugs cannot be claimed as a right. ठीक है, अब आप बोल दोगे कि हमारा तो ये right है. ठीक है, हमारा तो ये राइट है, हम क्लेम करेंगे, हम सिगरेट पिएंगे, हम ड्रग्स लेंगे. नो, ये मेडिकल रिसर्च ने बोला है, जो भी प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं, ये आपके लाइफ के लिए काफी इंजूरियस है. आपके साथ जो लोग रह रहे हैं, आपके सराउंडिंग्स में जो लोग रह रहे हैं, उनकी लाइफ काफी जो है डेंजर है, इंजर हो सकती है. सो दैट्स व्हाई ड्रग्स जो है, ये आप एज ए कि हम बैन ड्रग्स ले सकते हैं, स्मोकिंग कर सकते हैं, तो ये हमारा राइट है. नो, यू कैन क्लेम दीज टाइप्स ऑफ राइट्स बिकॉज दिस इज नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी. Okay, so now class, this is all about today. So we will continue with the second topic, where do rights come from our next class. So till then, stay connected, happy learning, take care of yourself, go through the topic, and if you face any problem, you may ask me in my next class. Thank you so much for joining the class, everybody. Bye bye.